So we are taking doubts of lecture 4. How should two resistances of 2 ohms be connected so as to produce an equivalent resistance of 1 ohm? Now, the thing is, I know this question can be MCQ, this question can be a subjective. Let's think of it as an MCQ and solve it as quickly as possible. Then we'll solve it subjectively. अगर 2 ohms है दोनों, we know that अगर हम 1/2 कर देंगे, हाफ प्लस हाफ 1 आ जाएगा, उसका रेसिप्रोकल भी 1 होगा, तो आंसर आ जाएगा, which means दोनों को पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं. Now, for subjective questions, you can test out only 2 things here. क्या टेस्ट कर सकते हैं हम? या तो इसे हम क्या कर दे, पैरेलल कर दे या सीरीज कर दे, क्योंकि दो ही है तो और कोई ऑप्शन बनता है क्या? नो, दो में तो और कोई ऑप्शन ही नहीं बनता सर. या तो वो दोनों सीरीज में होंगे एंड टू एंड, या फिर वो दोनों पैरेलल होंगे. सो इफ देर आर ओनली 2 ऑप्शंस हियर, I can just make both the cases, and you will make both the cases if it is a 2 marker also. कि आपने बोला अगर वो दोनों सीरीज में है, एक रजिस्टर, दो रजिस्टर, नेम देम प्रॉपर्ली. दिस इज पॉइंट ए, पॉइंट बी. या जब रेजिस्टेंस की बात करी हो सिर्फ और कुछ और नहीं दिया हो तो जबरदस्ती बैटरी बना के टाइम वेस्ट मत करो. R1, R2, and similarly this is point A, point B, and R1. By the way, you don't have to make this zigzag line. You can also make a simple box if you want for registers. It's just a more accepted diagram, so I would recommend. अगर मतलब मेरे से recommendation पूछो तो this is a better recommendation. Also, there should be no, मतलब मेरे पास इरेजर नहीं है वरना मैं मिटा देता यहाँ पे जब zigzag line में आता. There should be no solid line in between. Anyway, so these are the 2 cases. All of them have, those of them have 2 ohm resistance. You can mention them on top of them. And now for case 1, this is how you write in your proper examination. Also, you can take different points so that to not confuse them with each other, call it CD. So this is CD. Now case 1, resistors in series. So RT, total resistance, is equals to R1 plus R2, and you can mention here that they are in resistors. पूरा लिखना होता है, in series नहीं लिखना होता, resistors in series. So this is equals to 2 ohm plus 2 ohm, which gives 4 ohm. Case 2, you have parallel connection, just mention parallel connection. That is also enough, just sirf heading hai. And now you have 1 upon RT is equals to 1 upon R1 plus 1 upon R2 resistors in parallel. Now 1 upon RT is equals to 1 upon 2 plus 1 upon 2, which gives 1, implying RT equal to 1 ohm. Hence, the 2, दोनों दिखाना है तुम्हें क्योंकि सब्जेक्टिव कर रहे हो. बिकॉज इतने ऑप्शंस है नहीं कि हमें सब दिखाने से प्रॉब्लम है. क्या अगर बहुत सारे हुए तो यू विल ट्राइंग टू फिगर देयर आर थिंग्स. अभी करेंगे हम क्वेश्चन तो तुम्हें समझाऊंगा कि मतलब नहीं, नॉट ऑल. इसमें 2 ही केस तो इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता. लेट्स से किसी में 10 केस है तो इट्स नॉट वर्थ इट. नॉट वर्थ इट. और ऑल्सो आई टेल यू द साइकोलॉजी बिहाइंड हाउ टू डू इट सो दैट यू अंडरस्टैंड कि मतलब इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, किस लॉजिक से सोचना है मुझे. एनीवेज, hence the 2 Rm and the 2 resistors. Oh, means the 2 resistors must be placed parallel to each other for an equivalent resistance of 1 ohm.
Now see, even if this was a 3 marker, which in some cases it might be, even such a simple question, you have ample amount of material to justify your marks. So this is what I'm trying to teach you, how to write properly. Almost all of you know the answer right away in like half a second. But how to properly write it is this. लिख लो ये, then next करो. इसमें भी सेम करो, पॉइंट्स के नाम दो ए बी. Call this R1, call this R2, and let's call equivalent. And ऐसे statements भी लिख सकते हो आप. This will मतलब impress the examiner at least. Equivalent. स्पेलिंग गलत मत करना, बहुत ही ज्यादा मजा आ जाएगा. क्या होती है यू क्या रियल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस. जब मैं बोल देता हूँ ना स्पेलिंग के बारे में, जोक कर देता हूँ, तब तो स्पेलिंग और गायब हो जाती है कि और जोक कर और जोक कर. रेजिस्टेंस देखा, अभी रेजिस्टेंस भी भूलने वाला था. अरे यार, माय गॉड, माय ब्रेन. इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन आर ए बी, between A and B. RAB is equals to R1 plus R2, and you mention resistors in series. Now your R1 is 500 ohm, R2 is 1000 ohm. Okay? So we get 500 plus 1000, which is 1500 ohm या फिर 1.5 kilo. You can write it both the ways. Again, नाम दो R1, R2 और करंट थ्रू ईच रेजिस्टर निकालना है. देखो, R1 R2 दे दिया, इसके थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस V1, इसके थ्रू करंट I1, इसके थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस V2, इसके थ्रू करंट I2. Now we know that first of all total resistance RT is equal to, if I just, जैसे कहते हैं ना, मतलब इसको क्या करूं मैं, खींचूं इस डायग्राम को थोड़ा, सच दैट कि इसका जो बैटरी वाला कंपोनेंट है नीचे आ जाए. तो दिस मतलब ये देखो, इस पॉइंट से 3 कनेक्शन है हमारे पास. एक रजिस्टर, दूसरा रजिस्टर और बैटरी. बैटरी, एक रजिस्टर, रीड्रॉ कर लो इसको. दूसरा रजिस्टर, हाँ मतलब कर सकते हो, बट डायग्राम तो एनीवे बनाना है, तो माइट एज वेल रीड्रॉ. अगर डायग्राम बनाना ही है, हाँ हाँ, just make the diagram. It's not, it's a very very bad मतलब good thing to make a diagram even if it is not mentioned. MCQ में anyway बनाने की जरूरत नहीं है, बट सब्जेक्टिव में बना रहे हो, प्रॉपरली बनाओ, इतना टाइम नहीं लगता, बहुत बेनिफिट. बोलो क्या. हाँ, बैटरी नीचे. आज मैं तो कह रहा हूँ, मैं इसको ले आया, ट्रांसफॉर्म कर रहा हूँ मैं डायग्राम को, जिससे मेरे लिए मुझे दिखे कि ये दोनों पैरेलल में. जस्ट थिंक अबाउट इट कि ये दोनों तीनों, ये इस पॉइंट से तीनों कनेक्शंस है ना, तो यहाँ से भी तो तीनों कनेक्शंस है. मैंने जस्ट इनका ऑर्डर चेंज कर दिया, पर क्या पड़ता है, उससे पैरेलल ही तो है. मतलब मैंने उसे नीचे कर दिया कि मुझे दिखे ऊपर वाले दोनों पैरेलल में. सो दिस इज R1 एंड दिस इज R2. ठीक है, एंड दिस इज योर 24 वोल्ट बैटरी. ओके, नाउ यस. अच्छा, नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जब भी आप रीड्रॉ करोगे डायग्राम, या रीड्रॉ नहीं भी करो, तो देखो एक चीज मेंशन कर रहा हूं मैं यहाँ पे. मैं क्यों कहता हूँ कि डायग्राम बनाना बहुत जरूरी है, बिकॉज आपको R1 R2 तो लिखना ही पड़ता है ना हर बार. R1 R2 लिखोगे कहाँ, अगर डायग्राम नहीं बनाओगे? क्वेश्चन पेपर तो आप घर वापस ले जाओगे, वो तो जाना ही नहीं एग्जामिनर के पास. तो आपको R1 R2 मेंशन करना है, तो डायग्राम बनाना ही पड़ेगा. नाउ दिस इज 6 ohms and this is 4 ohms and you have 24 volts. Total resistance आ जाएगा R1, 1 upon RT is equals to 1 upon R1 plus 1 upon R2, which reason क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, resistors in नॉट रियली फॉर्मूला, इसका सिंप्लीफिकेशन होता है, तो मतलब हाँ, बट यही कर, फर्स्ट स्टेप यही रख. resistors in parallel. Now you have 1 upon RT is equals to 1 upon 6 plus 1 upon 4, which is equals to LCM 24. क्या आ गया? अब LCM चलो 12 ले लो, गुस्सा मत हो. हाँ, 12. 2 plus 3,
5/12. So basically RT is equals to 12 by 5 ohms. Now we know that VT is equals to 24 volts. Now VT is equals to IT into RT is in Ohm's law. Now VT दे रखा है 24 is equals to IT नहीं पता, लेकिन RT है 12 by 5. 12 to 24 I आ गया 10 एम्पेयर. अगर I 10 एम्पेयर है, we know that IT is equals to हाँ ठीक है, IT 10 आ गया. चाहिए चाहिए भी था क्या? फालतू में निकाल दिया मैंने, कोई जरूरत ही नहीं थी इसकी. चाहिए था? नहीं, नहीं ना, नहीं चाहिए था. तो बेसिकली वी नो दैट VT is equals to V1 is equals to V2. पैरेलल कनेक्शन में क्या कांस्टेंट होता है? वोल्टेज. पैरेलल कनेक्शन, which means V2 is equals to 24 volts. तो V2 is equals to R2 into I2, ओम्स लॉ. V2 कितना है? 24 इक्वल टू R2 कितना है? 4 इंटू I2 कितना आ गया? 6 एम्पियर. जरूरत ही नहीं थी, ये स्टेप की जरूरत ना था, मैंने कर दिया तो मैं मिटा नहीं रहा कि अगर कैलकुलेशन में वो भी होता. तो ये इस क्वेश्चन के लिए नॉट रिक्वायर्ड. ठीक है. सो दिस इज हाउ यू विल सॉल्व द क्वेश्चन. रीड्रॉ करो कहानी लिखो, रीड्रॉ करो कहानी लिखो. क्या पेन से? नहीं वो मत करो, ऐसे ही निकालो, ऐसे ही निकालो. क्या अगर पूछा है तो? अब मैं फॉर एग्जांपल इसमें कुछ ऐसा स्पेशल पूछा नहीं है, बट चाहो तो फाइंड करंट थ्रू ईच रजिस्टर बोला हुआ है, तो ये भी निकाल लिया. सिमिलरली किसके लिए कर लोगे? V1 के लिए भी कर लोगे. V1 इक्वल टू I1 इंटू R1, उससे I लाइक I1 भी निकल जाएगा. लिख लेना.